Hello friends, myself Dr. Nilesh Patel. I am from BK Modi Government Pharmacy College, and in continuation with the preparation for the drug inspector examination, today we are going to discuss some important topic related to IPR, QA and RA. All the topics were taken from the questions which was asked in the previous last 5 examinations conducted by the FDA, Food and Drug Administration, through the GPSC. Now here we can see first topic is about IPR. The almost 6 questions I have mentioned here, that 6 questions were asked out of 5 papers. Then the main point behind the IPR is this is intellectual property right. Now in India, we have a certain regulations separately for each. For like example, these are the subtypes of subtypes of IPR. That is a patent, copyright, trademark, design, database, geographical indication, trade secret. Now under this, each one is protected by a separate law. So in India, we have a regulation, and out of 5 question paper which was taken by the FDA, 6 questions were asked. इसमें से 6 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब एक ही सेक्शन में से. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट in each question paper that we can assume that there will be at least one question from IPR section. So what is IPR? We need to understand IPR का मतलब क्या होता है. Basically IPR means anything which is a creation of the mind ऑफ एन इंडिविजुअल. जो भी क्रिएटिव चीज़ दिमाग से निकलती है उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल. दीज वी कैन हैव अ एक्सक्लूसिव राइट. एक्सक्लूसिव राइट का मतलब हम दूसरे को एक्सक्लूड कर सकते हैं, एंड देन दैट इज़ फॉर द कमर्शियल पर्पस. ये जो चीज़ है वो कमर्शियल पर्पस के लिए होती है. सो हियर द टाइप्स ऑफ IPR, द इम्पोर्टेंट टाइप, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप इज़ अ पेटेंट. पेटेंट का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ज़्यादातर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए, आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम पेटेंट सेक्शन. एक ही क्वेश्चन था जो इन जनरल पूछा गया है. सो दीज आर द सब टाइप्स. हियर आई ऑल्सो मेंशन द टर्म. मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई एम गेटिंग वन पेटेंट, अगर मुझे कोई एक पेटेंट मिलता है तो उसका टर्म क्या होगा? दैट वुड बी 20 years. नाउ रिमेंबर, इन केस ऑफ पेटेंट इज अ टेरिटोरियल राइट. टेरिटोरियल राइट का मतलब होता है एक टेरिटोरी इसको देती है. लाइक इन केस ऑफ इंडिया, दैट इज गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट. That is under the Indian Patent Act 1970, Amendment 2005. So हर एक जो IPR है वो that is protected by a separate law, and in that case there will be a definite time. So in India, if I am having one patent, then it can be enforced for 20 years, provided मैंने उसको रिन्यू किया हो या किसी ने उसको मतलब जो भी मेरा पेटेंट है वो गवर्नमेंट ऑफिस से रिवोक ना हुआ हो. द सेम वे इन केस ऑफ कॉपीराइट, द टर्म ऑफ कॉपीराइट वुड बी लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 50 और 70 years. इन केस ऑफ ट्रेडमार्क 10 years प्लस रिन्यूड इनडेफिनेटली. मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ट्रेडमार्क है तो वो ट्रेडमार्क मुझे 10 साल तक मतलब मिलेगा, एंड देन उसके बाद जब तक मैं उसको रिन्यू करता रहूँ, रिन्यूअल फीस पे करता रहूँ, तब तक मिलेगा. वन मोर पार्ट इज़ अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन. जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ कोई जियोग्राफी से जुड़ी हुई है, जैसे कि इन इंडिया दार्जिलिंग टी, दैट इज़ एसोसिएटेड विद द रीजन ऑफ दार्जिलिंग. देन हम लोग बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक इन केस ऑफ कोल्हापुरी चप्पल, और जो मतलब लड्डू मिलते हैं हम लोगों को तिरुपति बालाजी से. सो दीज आर दी थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद द जियोग्राफी, सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन. Yes. Now next question is, XYZ pharmaceutical company developed. So here in the previous case, the question was which of the following is our intellectual property right in India? So copyright, trademark, patent, and all of those. These all are the part of intellectual property rights. We have already mentioned. Now the next question is. This question was asked in a senior drug inspector examination. XYZ pharmaceutical company developed a new tablet coating technology. What type of intellectual property
can be used by the company to stop other from copying this technology. Now here you need to remember, whenever there is a invention, यहाँ पे invention है, invention कौन सा है, न्यू tablet coating technology. सो अगर कोई भी इन्वेंशन आता है तो उसका प्रोटेक्शन 101% पेटेंट से ही होगा. मतलब लाइक इन केस ऑफ, अगर हम लोग पीछे जाए तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं कि अगर इन्वेंशन हो तो पेटेंट. कॉपीराइट किस चीज़ के लिए मिलता है, दैट इज़ ऑलवेज फॉर द आर्टिस्टिक वर्क. अगर किसी ने कोई बुक लिखा है, कोई म्यूज़िक बनाया है, कोई पेंटिंग बनाया है, तो वो सब चीज़ों के लिए कॉपीराइट मिलेगा. ट्रेडमार्क, दैट इज़ अ सिंबल और मार्क व्हाट वी कैन से, जो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है उसका हम सिंबल देख के मतलब बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट उसका है. सो उसका उसी वजह से उसका जो ट्रेडमार्क है उसकी वो कमर्शियल वैल्यू है. ये सब चीज़ें इनकी कमर्शियल वैल्यू होगी. मतलब दैट कैन हैव अ ट्रेड. उनको हम बेच सकते हैं, उनसे पैसे कमा सकते हैं, और जिस चीज़ की कमर्शियल वैल्यू है उसी का हमको आईपीआर मिल सकता है. जो चीज़ की कमर्शियल वैल्यू ना हो उसका आईपीआर नहीं मिल सकता. देन अगेन डिज़ाइन, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कार का डिज़ाइन लेके आता हूँ तो वो कार का डिज़ाइन, उसका भी प्रोटेक्शन हो सकता है. डेटाबेस, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एंड ट्रेड सीक्रेट. सो हियर फॉर इन्वेंशन, अगर कोई भी इन्वेंशन है तो इन दैट केस वी नीड टू रिमेंबर अ पेटेंट. हम लोगों को पेटेंट, तो यहाँ पे आंसर है रजिस्टर्ड डिज़ाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नन ऑफ द, बिकॉज पेटेंट इज नॉट देयर. यहाँ पे जितने भी आंसर है ऑप्शंस है उसमें पेटेंट नहीं है. दैट्स वाई द राइट आंसर इज पेटेंट, एंड सो द ऑप्शन डी इज ट्रू, नन ऑफ द अबव. So again, I have given a definition. Patent is an exclusive right granted by the government. You need to remember this word government, because in India, the Indian patent can only enforce within the territory of India. India की patent जो है इंडिया के अंदर ही वैलिड है. जो यूएस का पेटेंट होता है, यूएसपीटीओ देता है, वो यूएस के अंदर ही वैलिड है. यूरोप का जो पेटेंट होता है वो यूरोप के अंदर ही वैलिड है. कैनेडियन पेटेंट या चाइनीज़ पेटेंट वही कंट्री में वैलिड रहेगा. यू नीड टू रिमेंबर वन वर्ड, देर इज़ अ फैसिलिटी फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेशन, बट देर इज़ नथिंग लाइक इंटरनेशनल पेटेंट. कोई इंटरनेशनल पेटेंट नहीं होता है. मतलब एक जगह पे पेटेंट ले लिया एक कंट्री में और सब कंट्री में वैलिड हो, ऐसा नहीं होता. वी विल सी द सिस्टम, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एप्लीकेशन, बट हियर द पेटेंट इज गिवन फॉर द इन्वेंशन. इट शुड इन्वॉल्व इन्वेंटिव स्टेप. नाउ इन्वेंटिव स्टेप का मतलब होता है नॉन ऑब्वियसनेस, और इन्वेंटिव स्टेप का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग. अगर कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, अगर आपने उसका कुछ सॉल्यूशन दिया है विच इज़ अनकॉमन टू अदर, दैट टर्म्ड एज अ इन्वेंटिव स्टेप एंड इज कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी. अगर कोई भी आईपीआर का इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी नहीं है तो वो आईपीआर दिया ही नहीं जाएगा, उसका कॉमर्शियल वैल्यू होना कंपल्सरी है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड एन इन्वेंशन to be patentable not required to meet as per the Patent Act 1970. जो यहाँ पे मैंने लिखा है बेसिक कि भाई अगर किसी भी चीज़ की हमको पेटेंट चाहिए तो उसके अंदर 3 क्राइटेरिया होने कंपलसरी है. वन इज़ अ नॉवेल्टी. नॉवेल्टी का मतलब होता है न्यू, वो चीज़ न्यू होनी चाहिए, उसका कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए. देन सेकंड इज़ अ नॉन ऑब्वियसनेस और इन्वेंटिव स्टेप, दैट शुड बी अ अनकॉमन टू अदर. इट शुड नॉट बी ऑब्वियस, इट शुड बी अ सॉल्यूशन फॉर प्री एस्टैब्लिश प्रॉब्लम. एंड थर्ड वन इज़ अ यूजफुलनेस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, और उसका कुछ भी एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग उसको इंडस्ट्री में एप्लीकेबल कर सके. तो हियर द ऑप्शंस आर नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी. दिस ऑल आर अवेलेबल. द ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू, दैट इज अ प्रायोरिटी. सो यार आंसर है पेटेंटेबल नॉट रिक्वायर्ड. सो प्रायोरिटी डेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी पेटेंट एप्लीकेशन. हियर इन दिस केस आई हैव गिवन one chart, that is a chart for the timeline of patent cooperation treaty. Now the question is, in the patent cooperation treaty, patent application enter national phase within which month? I mean कितने महीनों में उसको enter होना है. Now for that you need to understand few points. आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी. What is the first what we can say patent cooperation treaty? patent cooperation treaty है क्या? patent cooperation treaty एक फैसिलिटी है जिसके अंतर्गत आप इंडिया में बैठे बैठे किसी भी कंट्री के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. दैट इज़ अ ट्रिटी. उसके अंदर एक मैकेनिज्म बनाया, उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं वाइपो. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने एक वाइपो एप्लीकेशन बनाया है, इंटरनेशनल एप्लीकेशन. तो उसके अंतर्गत हम लोग, फॉर एग्जांपल इफ़ आई विश टू अप्लाई पेटेंट इन अ यूएसए, आई कैन अप्लाई फ्रॉम इंडिया. इंडिया की जो रीजनल ऑफिस है हमारी, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, द रीजनल ऑफिस इज एट मुंबई. तो वो हम मुंबई ऑफिस से हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन दैट विल सेंड टू वाइपो.
तो ये जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी हम लोगों को कहाँ से मिलती है, पीसीटी के अंतर्गत मिलती है। नाउ पीसीटी क्या प्रोवाइड करता है हम लोगों को, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल एप्लीकेशन के लिए। तो इंटरनेशनल, मैंने आपको पहले ही बोला कि पेटेंट कौन दे सकता है, दैट इज गिवन बाय रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर क्या होता है, फर्स्ट इज वी हैव टू अप्लाई फॉर द पेटेंट। यहाँ पे लोकल एप्लीकेशन मैंने फाइल किया, अप टू 12 मंथ वी नीड टू गिव अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, हमको क्लेम फाइल करने होते हैं। अप टू 18 मंथ दैट वुड बी पब्लिश, उसको पब्लिश किया जाएगा। इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट 16 मंथ तक हो जाना चाहिए। एंड देन उसके बाद यहाँ जो जो प्रोसीजर होता है, अगर आप मांगते हो कि भाई एग्जामिनेशन रिपोर्ट चाहिए, तो वो सब यहाँ पे होगा उसके अंदर। एंड एट द एंड ऑफ 30 मीन्स इन 31st मंथ, 31वें मंथ के अंदर वो नेशनल फेज में। नाउ यहाँ पे क्या होगा, मतलब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पहले दिन एक एप्लीकेशन फाइल किया था, उसके अंदर मैंने लिखा था कि भाई मुझे 3 कंट्री के अंदर पेटेंट चाहिए, इंडिया, यूएसए एंड फॉर से जापान। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ तक का कॉमन प्रोसीजर होगा सभी कंट्री का। एंड देन 31st मंथ में ये जो एप्लीकेशन है 3 कंट्रीज को प्रोवाइड की जाएगी, इंडिया को, अमेरिका को एंड फॉर से जापान को, ये 3 कंट्रीज को भेज दिया जाएगा। नाउ दैट ट्रीटमेंट विल हैव एट नेशनल लेवल, इसीलिए इसको बोलते हैं नेशनल फेज। आगे का जो भी ट्रीटमेंट होगा वो कंट्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इंडियन एप्लीकेशन में वो लोग चेक करेंगे कि भाई इंडिया की जो लॉ है, इंडियन पेटेंट एक्ट, उसके अंतर्गत उन लोगों को पेटेंट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स विच इज पेटेंटेबल इन इंडिया बट इज सॉरी विच इज पेटेंटेबल इन यूएसए बट नॉट पेटेंटेबल इन इंडिया। बहुत सारे इन्वेंशंस ऐसे हैं जिसका हमको यूएस में पेटेंट मिल सकता है बट इंडिया में नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे नेशनल फेज में हो सकता है वो चीज़ें चेक होगी। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन एग्जाम्पल, दैट इज इन्वेंशन विच इज रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी। अगर कोई भी इन्वेंशन, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 कंट्री के लिए अप्लाई किया था, जापान, यूएसए एंड इंडिया। यहाँ पे नेशनल फेज में आके इंडिया वाले बोलेंगे कि भाई हम लोग एटॉमिक एनर्जी के लिए आपको पेटेंट नहीं दे सकते, बिकॉज it is mentioned in a Indian Patent Act section 4 that any invention which is related to atomic energy is not patentable। लेकिन यूएसए में आपको मिलेगा। सो ये नेशनल फेज डिसाइड करेगा भाई आपको कि भाई कितना तो यहाँ तक का इंफॉर्मेशन जो है या 30 मंथ का वो सब होगा WIPO वाइपो के अंदर अंडर दी PCT। और उसके बाद वो हर एक रिस्पेक्टिव कंट्री को भेज दिया जाएगा एप्लीकेशन जिसमें आपने अप्लाई किया है। तो वो फेज को बोलेंगे नेशनल फेज। तो यहाँ पे आंसर रहेगा 31st मंथ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑल्सो गिवन प्रोसीजर एट अ नेशनल लेवल। हमारे इंडिया में कौन सा प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर होता है इंडिया के अंदर भी। प्रोसीजर होता है कि भाई यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है, देन विद इन 12 मंथ आई हैव टू अप्लाई फॉर दी फाइनल स्पेसिफिकेशन, 18 मंथ में पब्लिकेशन होगा, अप टू 48 मंथ में मुझे रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करना है। नाउ रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन मीन्स मेरी एप्लीकेशन को आप चेक करो, वो जो एप्लीकेशन है मुझे 48 महीनों तक को फाइल कर देना है। आफ्टर दैट रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन दे विल चेक, दे विल इश्यू अ फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट दैट इज नोन एज FER, और उसके बेसिस पे अगर कोई उसका ऑब्जेक्शन नहीं लेता देन देयर विल बी अ ग्रांट ऑफ पेटेंट एंड देयर विल बी अ इश्यूएंस ऑफ पेटेंट। तो ये पूरा सिस्टम जो है, यहाँ पे एक चीज एडिशनल आपको याद रखना है, दैट इज यस, यहाँ पे लिखना है आपको कि भाई जो एप्लीकेशन फीस है उसमें आपका प्रोविजनल एप्लीकेशन है, उसके बाद फाइनल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे फाइल आपको करने, दैट इज नोन एज ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन विथ क्लेम। तो वो होता है क्लेम के साथ, और दैट वी हैव टू डू विद इन अ 12 मंथ। तो 12 मंथ के अंदर आपको फाइनल स्पेसिफिकेशन फाइल करना है, 18 मंथ्स में आपका पब्लिकेशन होगा, 48 मंथ तक आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट फाइल करना है, देन आफ्टर द प्रोसेस विल बी सेम एट नेशनल फेज। ये नेशनल फेज है पूरा। Yes, I need to remove this. Yes. Now the next question is the definition of. Now there will be certain question which is specifically asked from the act. आपके लिए ये सब चीज़ें मतलब थोड़ी बहुत मुश्किल होगी। दिस विल बी लेवल 3 क्वेश्चन। लेवल 3 क्वेश्चन का मतलब होता है कि उसको बहुत ही मतलब कठिन सवाल होता है। एज फार एज आई नो द स्ट्रक्चर इज प्रॉबेबली ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है कि 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं, या फिर मतलब कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं से पढ़ना पड़ता है, और 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन फॉल अंडर दिस कैटेगरी। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड फ्रॉम द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 अमेंडमेंट 2005। द डेफिनेशन ऑफ पेटेंटेड आर्टिकल एंड द पेटेंटी इज मेंशन इन विद सेक्शन, दैट इज द सेक्शन 82। तो मैं यहाँ पे जो कॉमन क्वेश्चन है दैट कैन बी आस्क्ड इन सच वे, ऐसे ही मतलब दूसरे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 2 दैट इज फॉर द डेफिनेशन, सेक्शन 3 दैट इज अ नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसके लिए इंडिया में हमको पेटेंट नहीं मिल सकता।
सेक्शन 4 एटॉमिक एनर्जी वहाँ पे ही आ जाएगा। देन वो अलग से भी मैंने डिस्कस किया। सेक्शन 7 दैट इज फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, आपको जितने भी एप्लीकेशन करने के लिए फॉर्म्स है वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अगर आपका जो पब्लिकेशन एंड एग्जामिनेशन का कोई भी एप्लीकेशन प्रोविजन है दैट इज गिवन इन द सेक्शन 11 एंड 12। अगर आपकी पेटेंट को कोई अपोज करता है दैट इज सेक्शन 25। अगर उसको इन्फ्रिंजमेंट मतलब अगर आपको इन्फ्रिंजमेंट शूट फाइल करना है या फिर आपका पेटेंट कोई ने मिसयूज किया है तो दैट वुड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 104। एंड देन ये सब पेनल्टीज है। उसमें लास्ट एक याद रखना सेक्शन 135 दैट इज द कन्वेंशन एप्लीकेशन। नाउ ये कन्वेंशन एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ से इंडिया में बैठे बैठे यूएसए में फाइल किया, अगर कोई यूएसए वाला वहाँ बैठे बैठे इंडिया में फाइल करता है तो वो जो एप्लीकेशन है इंडिया में आती है, वो जो एप्लीकेशन को हम बोलते हैं कन्वेंशन एप्लीकेशन, बिकॉज दैट इज वी हैव अ ट्रीटी अमॉन्ग द कंट्रीज नोन एज अ पेरिस कन्वेंशन, उसके ऊपर से नाम बना है कन्वेंशन एप्लीकेशन, एंड दैट द रीजन दैट कम्स अंडर द सेक्शन 135। One more question is which of the following is not patentable as per the Indian Patent Act 1970। और ये जो चीज़ है नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन, वो पेटेंट एक्ट के अंदर दो चीज़ें दी गई हुई। मतलब अगर वो आपका इन्वेंशन सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में आता है तो उसका आपको इंडिया के अंदर पेटेंट नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है ऊपर जो लिखा है, दैट इज एनी इन्वेंशन नीड टू बी अ नॉवल नॉन ऑबियस एंड हैविंग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अगर ये चीज़ है तो ये कॉमन है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि भाई कोई भी इन्वेंशन के अंदर ये तीन चीज़ें तो होनी ही चाहिए कंपलसरीली। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वो इंडिया के अंदर एडिशनल जो प्रोविजन है वो दिस आर दी नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 दैट इज द सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। तो हम लोग यहाँ पे भी आंसर नहीं देखते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे भी कौन कौन सी चीज़ें है जो इसके अंदर मतलब होती है, कवर होती है। एनी इन्वेंशन विच इज़ फ्रिवलस, जो चीज़ से आपको हंसी आए ऐसा कोई इन्वेंशन, विच इज़ कॉन्टेंटरी टू पब्लिक मोर्टालिटी, अगर किसी ह्यूमन बीइंग को हार्म करे ऐसा कोई इन्वेंशन। मैरे डिस्कवरी ऑफ प्रिंसिपल और फॉर्मूला, सिंपल खाली प्रिंसिपल है डिस्कवरी या फॉर्मूला बना देते हो तो उसका आपको पेटेंट नहीं मिलता, कंपलसरीली आपको उसको आर्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ता है। देन टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वो जो आईसी है ऊपर से कैसी दिखती है। मैरे डिस्कवरी ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ नोन सब्सटेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिए दिस इज नोन एज अ सेक्शन 3D, इसको हम बोलते हैं सेक्शन 3D, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये क्या बोल रहा है ये सेक्शन की भी है, अगर कोई भी ड्रग है अपने केस के इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, अगर कोई भी ड्रग है उसका एक फॉर्म अवेलेबल है, उसका आप क्रिस्टलाइन दूसरा फॉर्म लेके आए या फिर एमोरफस फॉर्म लेके आए या फिर उसका कोई नया यूज लेके आए, तो वो केस में इंडिया के अंदर आपको पेटेंट नहीं मिल सकता। लाइक इन केस ऑफ एस्पिरिन फर्स्ट यूज वॉज एनाल्जेसिक एंड सेकंड यूज इज एंटी प्लेटलेट, वो ब्लड रिलेटेड इश्यूज के अंदर यूज होता है। तो वो केस के अंदर जो सेकंड यूज है उसका इंडिया में पेटेंट नहीं मिल सकता, यूएस में मिल सकता है बट इंडिया में नहीं मिल सकता। रीजन इज इट इज मेंशन इन अ सेक्शन 3D दैट अ मैरिड डिस्कवरी ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ नोन सब्सटेंस और अ न्यू यूज ऑफ नोन सब्सटेंस इज नॉट पेटेंटेबल। देन अगेन सब्सटेंस ऑप्टेंड बाय मैरे एडमिक्सचर, हम लोगों ने पैरास्टामोल और डाइक्लोफेनाक को मिक्स कर दिया और उसका पेटेंट मांगा तो नहीं मिल सकता। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, कैसे कोई चीज़ मतलब बगायती या फिर खेती की कोई चीज़ हम लोग की है वो उसका जो मेथड है वो इंडिया के अंदर पेटेंटेबल नहीं है। एनी इन्वेंशन विच इज़ रिलेटेड टू अ ट्रेडिशनल नॉलेज, अपना आयुर्वेद का कोई भी नॉलेज है वो इंडिया के अंदर पेटेंटेबल नहीं है। एनी प्रोसेस फॉर द सर्जिकल डायग्नोस्टिक और अदर ट्रीटमेंट, अगर कोई भी ऑपरेशनल ट्रीटमेंट है या फिर कोई सर्जिकल है कोई डायग्नोस्टिक है तो जो पेशेंट को अफेक्ट करता है ऐसी कोई भी प्रोसेस इंडिया के अंदर पेटेंटेबल नहीं है। एनी मैथमेटिकल मॉडल, बिजनेस मेथड, कंप्यूटर प्रोग्राम पर से और अल्गोरिदम इज नॉट पेटेंटेबल। नाउ यू नीड टू रिमेंबर सॉफ्टवेयर पेटेंटेबल नहीं है, क्यों पेटेंटेबल नहीं है, बिकॉज उसका कॉपीराइट होता है। देन अ प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेक्चर लेने की स्टाइल या फिर कोई प्रेजेंटेशन की स्टाइल, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इंडिया के अंदर पेटेंटेबल नहीं है। देन लिटरेटरी देन म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क, दैट इज लिटरेचर रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है, बिकॉज ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड अंडर द कॉपीराइट। A marriage scheme or a rule of method or a performing mental act or playing game, these all things are not patentable। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो वो सेक्शन 3 में मेंशन की गई है। ये जो एक्ट है ऊपर मैंने जो यहाँ पे मेंशन किया है वो सेक्शन 3D है। और इसके बाद जो ये है सेक्शन 4 दैट इज नो पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर द इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी। तो अगर कोई भी चीज़ आपका इन्वेंशन सेक्शन 3 या सेक्शन 4 में फॉल होता है तो वो इंडिया के अंदर पेटेंटेबल नहीं है। नाउ लेट अस गो बैक टू प्रीवियस स्लाइड।
तो यहाँ पे आप देखिए एनी इन्वेंशन और बायोलॉजिकल प्रोसेस और प्रोडक्ट प्लांट, ये चीज़ है उसका आपको कोई मतलब अगर कोई भी इशू अगर इन्वेंशन ह्यूमन बीइंग्स बायोलॉजिकल प्रोसेस प्लांट और एनिमल की है तो वो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। उसके सिवा जो कुछ भी लिखा है यहाँ पे दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेटेंटेबल, ये नॉन पेटेंटेबल है, बाकी सब चीज़ों के लिए आपको पेटेंट मिलेगा, यू कैन गो थ्रू। Now these all questions were asked from the IPR. Now next question is about the quality assurance and regulatory affairs. The first question is about the ISO. एक क्वेश्चन पूछा गया है ISO के केस में, क्या क्वेश्चन है कि भाई ISO की दो सीरीज है, आपको याद रखना। ISO दैट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, उसका ऑफिस जिनेवा में है, उसकी दो सीरीज है, दैट इज ISO 9000 एंड ISO 14000। 9000 है दैट इज रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, 14000 है दैट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। और ये जो दोनों सीरीज है उसके अंदर दो सर्टिफिकेशन अगर आपको पूछे कि भाई सर्टिफिकेशन किस चीज़ का मिलता है, तो सर्टिफिकेशन मिलता है ISO 9001 का और ISO 14001, इन दोनों चीज़ों का आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। दैट इज हियर द क्वेश्चन इज ब्लैंक इज द सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड डीलिंग विद द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज ISO 9000। 1 2 3 वो नहीं आएगा, 9000 सीरीज है हमारा। The next question is from US FDA, that is a CFR, that is a Code of Federal Regulation. Now what is the CFR? उनका एक पूरा regulations है, उनका पूरा मतलब लिखा हुआ constitution के अंदर law है, उसको हम बोलते हैं CFR। CFR वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा जब भी US FDA की या फिर जो भी कोई डिवाइसेस की बात आती हो या फिर क्वालिटी सिस्टम की बात आती हो, तो यहाँ पे CFR स्टैंड्स फॉर, इतना ही पूछा है कि भाई उसका मतलब क्या होता है, दैट मीनिंग इज कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। बट यहाँ पे मैंने CFR 21 FDA लिख के कौन कौन सी चीज़ उसके दायरे में आती है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जस्ट गो थ्रू इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। देखिए हर कंट्री के अंदर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जो मेडिसिन रिलेटेड जो सब्सटेंसेस होती है, दवाई की, ड्रग्स की, उसका कंट्रोल करती है। लाइक इन केस ऑफ इंडिया दैट इज द CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज गिविंग ऑल द परमिशंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, सेल, इंपोर्ट, वो सब इसके अंडर में आता है। सो दिस इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया। अगर कोई भी आपको पूछे कि भाई इंडिया के अंदर ड्रग कौन गवर्न करता है, तो ये करता है CDSCO। इंटरनेशनल जो अथॉरिटीज़ है उसके अंदर होती है ICH की बहुत सारी इंडिपेंडेंट गाइडलाइन है, WHO भी बहुत सारे रेगुलेशंस, बहुत सारी गाइडेंस देता है, WTO दैट इज गिविंग द गाइडेंस रिलेटेड टू अ ट्रेड, किसी भी चीज़ का बिजनेस हो इसके लिए आता है। देन यूरोपियन यूनियन दैट इज़ द EMEA, इसके लिए और भी एक है दैट इज़ द EMA, वो बाद में आएगा। देन US, उसके अंदर US FDA मेन है, UK के अंदर MHRA है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर TGA है, देन चाइना के अंदर SFDA, ब्राज़ील के अंदर नेशनल हेल्थ सर्वेलेंस एजेंसी विच इज़ ऑल्सो नोन एज एनवीज़ा। एक एनवीज़ा वर्ड याद रखना बिकॉज इट इज़ द अथॉरिटी इज फेमस बाय दिस नेम। एंड देन न्यूजीलैंड दैट इज अ मेडसेफ। यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो दैट इज आई मीन थेराप्यूटिक्स गुड एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज अ TGA, यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज TGA रेगुलेट ऑल एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ मेडिसिन, वो रेगुलेट करता है। बिकॉज यहाँ पे मैंने बाजू में पहले लिखा है वो पढ़ लेते हैं। द थेरापेटिक्स गुड एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज द अथॉरिटी फॉर ऑस्ट्रेलिया, अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग व्हाट थेरापेटिक्स गुड्स इंक्लूडिंग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन, वैक्सीन, सनस्क्रीन, विटामिन, मिनरल, मेडिकल डिवाइसेस, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें उसको कंट्रोल कौन करता है, TGA कंट्रोल करता है, दैट इज अ थेरापेटिक्स गुड एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन सी चीज़ है जो इसके रेगुलेशन में नहीं आती, यहाँ पे सब है, मतलब देखिए मेडिसिन है, विटामिन है, वैक्सीन है, supply of bottled water that does not comes under the TGA. Now why this question is important? Next question में आपको समझ में आएगा। yes, like in case of TGA does not regulate, कौन कौन सी चीज़ें रेगुलेट नहीं करता है, तो ये चीज़ें वेटरनरी, हेल्थ इंश्योरेंस, कॉस्मेटिक, ये सब रेगुलेट नहीं करता। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया, दैट इज आस्क्ड इन डेप्यूटी कमिश्नर एग्जामिनेशन। नाउ नेक्स्ट इज which of the following product are regulated by the US FDA, that is a regulatory authority for United States of America। उसका यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कौन कौन सी चीज़ को रेगुलेट करता है। देखिए यहाँ पे बॉटल्ड वाटर विच इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द US FDA, विच इज नॉट रेगुलेटेड बाय द TGA। ऑस्ट्रेलिया का जो TGA है वो बॉटल वाटर को रेगुलेट नहीं करता, बट US FDA करता है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आपको दी गई है, बट यू कैन सी बॉटल वाटर अगर आपको आइडिया नहीं है, देन यू कैन हैव अ 2 more आंसर, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग एंड नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग, दिस बोथ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ US FDA। सो यहाँ पे B and C बोथ आर ट्रू, दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव।
the transfusion of medicine, medical devices and blood component in UK, that is the United Kingdom, is regulated by MHRA. यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे यूके में देखिए बाजू में दिया हुआ है MHRA, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये यूके के लिए है. यूरोप के लिए मैंने एडिशनल यहाँ पे लिखा है बिकॉज नाउ इट इज, प्रीवियसली इट वाज नोन एज EMEA, नाउ इट इज नोन एज यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, उसको ये नाम से जाना जाता है. तो अगर यूरोप का क्वेश्चन आता है तो ऑप्शंस दोनों में से आप पहला, अभी राइट नाउ द ऑप्शन इज यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, बट EMEA अगर लिखा होता तो वो भी राइट आंसर है इसके अंदर. सो इन केस ऑफ यूनाइटेड किंगडम द राइट आंसर इज MHRA. So these questions were from the regulatory affairs, different regulatory authorities. Now the next question is about the ICH guideline. ICH guideline का मतलब क्या है? Initially it was known as International Conference for Harmonization, लेकिन अभी उसका नाम जो बदल गया है, नया नाम है International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use. Now you need to understand the technical requirement. Technical requirement का मतलब होता है कि अगर मुझे किसी भी ड्रग सब्सटेंस के रजिस्ट्रेशन के लिए या उसके अप्रूवल के लिए प्रोसेस करना है तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो भी है वो ICH ने यहाँ पे दी हुई है. नाउ इन केस ऑफ ICH उसने चार सेक्शंस है उसके अंदर दिया हुआ, दैट इज वन इज अ क्वालिटी, सेकंड इज अ सेफ्टी, थर्ड वन इज एफिकेसी एंड फोर्थ वन इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, द गाइडलाइन दैट डिस्क्राइब द एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, तो ये सब आपने बहुत बार सुना होगा. ICH Q2R1, इसके Q2 लिखा है, उसके बाद में एक वर्ड और आता है R1. तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बाजू में मैंने पूरा लिस्ट बनाया हुआ है विच आर द क्वालिटी सेक्शन की जितनी ICH की गाइडलाइन है, दैट इज नोन एज अ Q1, Q2, Q3, Q4. तो जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया हुआ है. Q1 दैट इज द स्टेबिलिटी, Q2 दैट इज द एनालिटिकल वैलिडेशन, Q3 विच इज रिलेटेड टू इम्प्यूरिटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्यूरिटीज, Q4 फार्माकोपियास, Q5 दैट इज द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये याद रखना है आपके. Q7 ऑल्सो दैट इज द GMP, Q8 फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट एंड Q10 दैट इज द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम. अभी ये 8, 9, 10 ये सब तीनों जो जितनी भी है ना दैट इज रिलेटेड टू अ QBD. अगर कहीं पे भी कोई आपको पूछता है कि कौन सी गाइडलाइन है जो QBD रिलेटेड है तो उसमें से ज़्यादातर QBD वाली ये गाइडलाइंस होगी. मतलब 8, 9, 10 ये सब जो गाइडलाइंस है वो उसके रिलेटेड है. तो यहाँ पे आपको ये लिस्ट याद रखना है खाली. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ ICH, यहाँ पे मैंने एक पूरा लिस्ट बना के दिया है कि भाई अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी और मल्टीडिस, बहुत सारी गाइडलाइंस है, बट मैंने जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है उसको एक्सट्रैक्ट करके एक लिस्ट बना लिया है. इन केस ऑफ क्वालिटी गाइडलाइन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. इन केस ऑफ सेफ्टी गाइडलाइंस यू नीड टू रिमेंबर S1 A, B, C that is for the carcinogenicity, S2 that is for genotoxicity, S for toxicity testing and S7 that is for the pharmacology study. ये चार नाम आपको खाली याद रखने हैं, बाकी सभी गाइडलाइन आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है. देन एफिकेसी के अंदर आपको जो मेन याद रखना है दैट इज E2 फार्माकोविजिलेंस, E6 आपको बहुत याद रखना है दैट इज द गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस. दी क्लिनिकल ट्रायल्स जितने भी होते हैं उसका जो प्रोटोकॉल गाइडलाइन है दैट इज गिवन इन द गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस. देन E7 दैट इज द क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर द जेरियाट्रिक प्रेशन, E11 दैट इज फॉर द पेडियाट्रिक प्रेशन एंड E7 दैट इज द मल्टी रीजन क्लिनिकल ट्रायल्स. और इसके अंदर जो मल्टी डिसिप्लिनरी है उसके अंदर आपको जो याद रखना है दैट इज द M4 that is a common technical document and M8 that is a ECTD, electronic form of common technical document. बाकी सब चलेगा. M10 you can remember biotechnological method validation and the development. Now the next question is now we can have a same answer. I mean from the whatever discussed before, the guideline ICH 1A refers to what? 1 के अंदर हम लोगों ने स्टेबिलिटी पढ़ा है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी वाला एक ही आंसर है. अदर इज जनरेशन ऑफ फोटो स्टेबिलिटी इंफॉर्मेशन. 1 के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 सॉरी A, B, C, D, E, F वो सब है उसके अंदर. एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन ये नहीं, F फोटो स्टेबिलिटी है उसके अंदर, लेकिन दैट्स द लास्ट ऑप्शन. बट हियर दे हैव आस्क्ड Q1A, that is the stability of new molecular entities and associated drug product. तो ये सब क्वेश्चन जितने भी थे that is related to ICH. Now the next type of question which is related to GMP and QA, quality assurance score. मैंने यहाँ पे बाजू में एक फिगर बनाया है, you need to understand this figure. इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, अगर कोई भी कंपनी में कुछ भी मैन्युफैक्चर होता है तो उसका जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है वो होता है क्वालिटी एश्योरेंस. एनी एक्टिविटी विच इज अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ ड्रग इज मॉनिटर्ड, इज कंट्रोल्ड, इज रेगुलेटेड बाय द QA.
दैट इज़ अ क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट। उसके क्यूए का जो यूनिट है उससे वो सब गवर्न होता है। छोटी से छोटी बात, अगर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है अगर उसके अंदर आपका ड्रग डिग्रेड हो रहा है तो वो भी क्यूए देखेगा। आपकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसका वैलिडेशन सॉरी कैलिब्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी क्यूए देखेगा। आपकी जो मेथड्स है वो वैलिडेटेड है कि नहीं वो भी क्यूए, प्रोसेस वैलिडेशन वो भी क्यूए देखेगा। आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका ट्रेनिंग कंपोनेंट है वो भी क्यूए देखेगा। सो जितनी भी चीज़ें क्यूए क्वालिटी को अफेक्ट करती है दैट इज कंट्रोल बाय क्यूए। देन सेकंड इज द जीएमपी। नाउ एनीथिंग विच इज अफेक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग, गुड मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जितने भी इश्यूज है तो जीएमपी दैट इज अ पार्ट ऑफ क्यूए। और उसके अंदर जो होता है दैट इज अ क्यूसी, दैट इज अ क्वालिटी कंट्रोल। उसका काम है खाली टेस्टिंग। मतलब बेसिकली 5 रोल है क्यूसी के। नंबर 1 इज द सैम्पलिंग, नंबर 2 इज द टेस्टिंग, नंबर 3 इज द स्पेसिफिकेशन, नंबर 4 दैट इज द डॉक्यूमेंटेशन एंड नंबर 5 दैट इज द रिलीज। तो ये जो 5 काम है वो क्यूसी के। क्यूसी का काम है खाली टेस्टिंग करना। जीएमपी का काम है देखना कि भाई जो कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का हो। और ये सब चीज़ें वो कैसे अचीव की जाती है वो उसका जो पूरा रोल है दैट इज द क्यूए। यहाँ पे मैंने लिस्ट एक रखा हुआ है, दीज आर द एब्रीवेशन। जीएमपी दैट इज अ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जीसीपी दैट इज अ गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, जीएलपी दैट इज अ गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, GSP good storage practice, GDP that is a good distribution practice, and GRP that is a good review practice. So the question which was asked in assistant commissioner examination, according to WHO QC is a part of what? QC is a part of GMP. हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि QC है वो GMP का part है। Now from the CGMP guideline there are some sub part। जो GMP guideline अपना है वो that is known as a schedule M। हम लोगों ने jurisprudence का एक lecture था उसके अंदर ये discuss किया था, that is schedule M which is a GMP in case of India। in case of CGMP there are certain sub parts, वही sub parts है सब इसके अंदर जो हमारे schedule M में GMP में। but यहाँ पे sub part specific पूछा गया है that in CGMP sub part G यहाँ पे लिखा हुआ पैकेजिंग एंड लेबलिंग कंट्रोल is related to packaging and labeling control. So I have given all sub part, if you wish you can remember all this। जो आपके मोटे तौर पे अगर आप उसको याद रख सकते हो that can be good, because आपको ये याद रहना चाहिए कि भाई GMP के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कवर होती है इसके अंदर। Now the next question is which of the following is the role of artificial intelligence? So this question which was asked by the GMP on quality assurance. Now the question is for artificial intelligence। तो artificial intelligence का मतलब होता है कि कहाँ पे हम लोग कंप्यूटर जो डेटाबेस है उसका यूज़ करते हैं, कौन कौन सी चीज़ के अंदर कर सकते हैं। Now in general as far as I know in this case there are so many systems available। तो आपको ये भी लग सकता है कि all of above ये भी राइट आंसर है, बट जो आंसर यूएस दैट इज एफडीए ने जो सॉल्यूशंस में दिया है दैट इज अ प्रेडिक्शन ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। ड्रग डिस्कवरी में जितने भी टॉपिक्स हैं मतलब दैट इज मॉलिकुलर मॉडलिंग और क्यूएसएआर और वेदर दैट इज रिलेटेड टू अ कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री, ये सब जो चीज़ें हैं उन सब के अंदर कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो दैट्स द प्रेडिक्शन ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन विच इज़ द मोस्ट विजिबल आंसर। प्रेडिक्शन ऑफ रिएक्शन यील्ड, अभी भी जितने भी मतलब रिएक्शन सिंथेसिस है वो भी बहुत सारे मतलब कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री यू कैन हैव दिस रिएक्शन यील्ड, वो भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो जो आंसर मेरे दिमाग में है दैट इज ऑल ऑफ द अबव, बट जो आंसर एफडीए में दिया गया है पेपर के अंदर सॉल्यूशन में दैट इज द प्रेडिक्शन ऑफ रिसेप्टर ड्रग इंटरेक्शन। Now another different question, the oldest government quality control laboratory of drug control authorities in India is, that is the Tamil Nadu, that is a CDTL Tamil Nadu Central Drug Testing Laboratory। I have included this question because this question was left while discussing the issues related to a jurisprudence। हम लोग जब jurisprudence DNC Act discuss कर रहे थे तब ये question बच गया था, so I have included here। Now the next question is regarding a BIS, that is the Bureau of Indian Standard। Now in case of India जो क्वालिटी है प्रोडक्ट वो उसको हम लोग अलग अलग मतलब बहुत सारी चीज़ों से कंट्रोल करते हैं। वन इज़ BIS दैट इज़ अ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। हर चीज़ जो होती है उसके मुताबिक जो बदलता रहता है उसका स्टैंडर्डाइजेशन, बट BIS इज़ वाइडली एक्सेप्टेबल। बहुत सारी जगह पे मैंने यहाँ पे वो मार्क भी रखा है उसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो ये जो रजिस्टर्ड मार्क है उसका BIS का वो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे देखा होगा, दैट इंडिकेट्स कि भाई ये जो प्रोडक्ट है उसको BIS ने सर्टिफिकेशन दिया, मतलब दैट प्रोडक्ट इज फॉरवर्ड, दैट प्रोडक्ट BIS इज नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ द इंडिया एस्टैब्लिश्ड अंडर द BIS एक्ट 2016। BIS एज प्रोवाइडिंग ये जो प्रोडक्ट जो भी इसके ऊपर मार्क होगा वो क्या होगा, सेफ रिलायबल गुड क्वालिटी गुड्स मिनिमाइजिंग हेल्थ हैजार्ड। मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा ये उसके अंदर ये सब कैरेक्टरिस्टिक होगी टू द कंज्यूमर, वो जो कस्टमर होगा उसके लिए ये सब क्वालिटीज़ उसको प्रोवाइड करेगा। देन
एक और वर्ड है दैट इज द ISI, ISI दैट इज ISI मार्क हम लोग जिसको बोलते हैं, बट नाउ डेज द BIS इज गिवन टू द मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये जो लेबोरेटरीज है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक अलग से मतलब बना के रखा है टेबल, दैट इज नोन एज NABL, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। जितनी भी लेबोरेटरीज है, कौन कौन सी लेबोरेटरीज? टेस्टिंग लेबोरेटरीज, कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरीज, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर्स वो लेबोरेटरीज, देन रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर्स, ये सब चीज़ें उसको सर्टिफिकेशन कौन देता है, मतलब वो जो लैब है वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको सर्टिफिकेशन देता है NABL। तो ये जो चीज़ है ये सब क्वालिटी कंट्रोल करती है। नाउ द क्वेश्चन इज ब्यूरो ऑफ BIS that is engaged in developing the standard for the DAS sector, chemical, food, medical equipment, सब ये सब को इसके अंदर सब सेक्टर्स के अंदर BIS का मार्क एप्लीकेबल है, बिकॉज इन ऑल द केसेस वी नीड टू गवर्न अ क्वालिटी। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज द राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन के 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस लॉ। और जो एग्जामिनेशन है, मतलब द एग्जामिनेशन बाय द FDA, वो जो ऑफिसर की एग्जामिनेशन है, ड्रग इंस्पेक्टर, ही और शी नीड टू हैव अ नॉलेज अबाउट दैट इज द राइट टू इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो है द पब्लिक, इफ द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। तो ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर क्या होता है? अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जितनी भी गवर्नमेंट एंटाइटीज है वहाँ पे कोई भी कॉमन मैन इन्फॉर्मेशन मांग सकता है कि भाई आज फॉर एग्जांपल कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आपको कोई चीज़, फॉर एग्जांपल आपका कोई सैंपल फेल हो गया है तो उसका आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई एग्जामिनेशन अथॉरिटी है तो आपके क्वेश्चन पेपर का आपको चाहिए कि भाई मुझे कितने मार्क्स मिले, वो आपको बताना पड़ेगा। ये सब इन्फॉर्मेशन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सेटअप के अंदर में आती है तो वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। और वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है वो किसको प्रोवाइड करना होता है? वो ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है या फिर एक ऑफिसर को उसका ड्यूटी दिया जाता है अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको, वो जो ऑफिसर है उसको बोलते हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। फेल्स टू गिव इन्फॉर्मेशन टू द इन्फॉर्मेंट, जिसने मांगा है इन्फॉर्मेशन, विद इन द पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड, मतलब अल्टीमेटली इज 30 डेज पीरियड, 30 दिन में उनको देना होता है इन्फॉर्मेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इज कॉल्ड, उसको बोला जाएगा डीम्ड रिजेक्शन। डीम्ड रिजेक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई ऑफिसर आपका इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो उसको माना जाएगा कि उसने आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया, आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया। उसकी भी मतलब पेनल्टीज है, उसका भी बहुत सारा प्रोविजंस है। नाउ दीज आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ RTI एक्ट। यहाँ पे मैंने कुछ साइलेंट फीचर्स रखे हैं। नंबर 1, ऑल सिटीजन पजेस द इन्फॉर्मेशन टू राइट टू इन्फॉर्मेशन। हर कोई इंडिया का जो सिटीजन है उसको हक है कि वो कोई भी गवर्नमेंट सेटअप से इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। देन इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन विद इन द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट इन अ नॉर्मल केस इफ द इन्फॉर्मेशन इज मैटर ऑफ लाइफ और लिबर्टी ऑफ पर्सन। अगर किसी इंसान के बारे में हो, उसकी लाइफ के बारे में हो, इन दैट केस इट कैन बी ऑब्टेन विद इन द 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ रिक्वेस्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि भाई कोई ऐसी चीज़ है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिससे मेरी लाइफ को खतरा है, तो वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को विद इन द 48 आवर्स देना होगा, या फिर दैट इज गिवन इन दी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। देन एवरी पब्लिक अथॉरिटी इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑन रिटन रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अगर आप बहुत सारे पोर्टल्स है, अभी तो RTI एक्ट के ऑनलाइन पोर्टल्स भी आ गए हैं, इसके अंदर आप ऑन पीस ऑफ पेपर भी आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। अगर आप इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो वो उनको देना पड़ेगा। व्हेन यू आर इंडियन सिटीजन, वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो भी है पब्लिक अथॉरिटीज, उसको वो इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। सर्टेन इन्फॉर्मेशन आर प्रोहिबिटेड। नाउ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको नहीं मिल सकती, दैट वी विल डिस्कस, दैट इज द सेक्शन 8 ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अपील अगेंस्ट द डिसीजन। अगर मेरे को फॉर एग्जांपल आपने कोई इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मांगी है, वो आपको नहीं मिली, तो आप आगे आप उसको और जगह पे अपील कर सकते हैं। दैट इज CIC, दैट इज द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, और स्टेट इन्फॉर्मेशन अथॉरिटीज़। एक ही ऑफिस में 2 अथॉरिटीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है उसके ऊपर भी एक ऑफिसर उसको रखा जाता है। अगर वो भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो आप स्टेट के अथॉरिटीज़ के पास जा सकते हो। अगर स्टेट में भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, देन यू कैन अप्रोच सेंट्रल इन्फॉर्मेशन CIC, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, एंड you can have a information. Now these are the different section in the right to information act. Section 3 that gives you a power right to information. Section 4 that is obligation to public authorities. Public authorities को compulsorily ये information देना ही पड़ेगा. Now most of the public authorities are doing what? Like in case of government setup, अगर for example आप मांगते हो कि भाई आपके कितने कर्मचारी है, आपके पास कितने एम्प्लॉइज है, उनका ड्यूटीज़ क्या है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादातर पब्लिक अथॉरिटीज़ अपनी वेबसाइट पर डाल देती है, तो किसी को मांगना ही ना पड़े कि भाई वो लोग इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, दैट इज ऑन अ डिस्क्लोजर पार्ट, वो आप सीधी वहाँ से देख सकते हैं।
देन सेक्शन 5 दैट इज द डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। आपको 2 ऑफिसर्स अपॉइंट करने होते हैं, वन वुड बी अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसको ये इन्फॉर्मेशन देना होता है, हु इज अबाइड टू गिव दिस इन्फॉर्मेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 सेक्शन 5। देन Section 6 that is a request for the obtaining information, 7 that is a disposal request, then section 8 which is exemption of disclosure of information। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आप नहीं मांग सकते, जिसका आपको नहीं मिल सकती, मतलब। देन सेक्शन 9 ग्राउंड फॉर द रिजेक्शन टू एक्सेस इन अ सर्टेन केसेस, अगेन दैट वाज ऑलमोस्ट रिलेटेड टू अ सेक्शन 8 कि भाई वो इन्फॉर्मेशन को आप रिजेक्शन कर। देन सेक्शन 10 दैट इज अ सिवरेबिलिटी, एंड देन दैट इज अ सेक्शन 11 दैट इज अ थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। वो इतने प्रोविजंस है, मतलब बहुत सारे, ऑलमोस्ट दीज आर द 30 सेक्शंस, बट मैंने कुछ ही सेक्शंस यहाँ पे लिखे हैं विच आर इंपॉर्टेंट टू RTI एक्ट। नाउ यहाँ पे मैंने पूरा एक लिस्ट रखा हुआ है। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कम अंडर द परव्यू ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एविएशन रिसर्च सेंटर, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट दैट इज नोन एज ED, एंड द आंसर इज नॉन ऑफ द अबव। ये सब ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, वहाँ पे सिक्रेसी का मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब। तो यहाँ पे पूरा एक नीचे लिस्ट मैंने दिया है कि भाई कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करेगी। नंबर 1 इज इन्फॉर्मेशन अफेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन ये क्राइटेरिया में फॉल होती है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेसली फॉरबिडन टू दी पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, अगर कोर्ट ने मना किया है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना है तो वो आपको RTI से नहीं मिल सकता। इन्फॉर्मेशन रिव्यूड इन अ कॉन्फिडेंस ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोई डील किया है और उनको कॉन्फिडेंस है कि भाई इंडिया वाले ये इन्फॉर्मेशन ब्रीच नहीं करेंगे या फिर डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशन एंडेंजर द लाइफ ऑफ एनी पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं पे पुलिस को कुछ खबर दी है और मेरा रिकॉर्ड में नाम बोल रहा है और कोई बंदा या फिर कोई इंसान वो इन्फॉर्मेशन मांगता है कि वो इन्फॉर्मेशन किसने दिया था, सो दैट विल लीड टू दैट विल पुट माय लाइफ इन एंडेंजर, सो मेरी लाइफ को मतलब खतरा होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकता। देन कैबिनेट पेपर्स, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री, मिनिस्टर्स, वो इन्फॉर्मेशन आपको कैबिनेट के पेपर्स नहीं मिल सकते। इन्फॉर्मेशन कॉज अनवारंट इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल, मेरी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप नहीं मांग सकते। देन इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल, कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, IPR की रिलेटेड या फिर ट्रेड सीक्रेट रिलेटेड जो IPR में था वो कोई भी अगर इंफॉर्मेशन तो आपको नहीं मिल सकता। देन इंफॉर्मेशन कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, जहाँ कोई चीज़ पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेशन विधानसभा में हमारे यहाँ पे रखी गई हो तो वो इन्फॉर्मेशन ऑफ RTI से नहीं मांग सकते। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टॉपिक्स विच वॉज आस्क्ड in a 5 different examination, that is a 2-3 commissioner level examination and 2 SDI examination conducted by the FDI and examination taken through the GPSC। सो ये सब टॉपिक्स थे जो क्वेश्चन पूछे गए, ऑलमोस्ट दीज आर द 24 क्वेश्चंस, 24-25 क्वेश्चन। सो दीज आर दी क्वेश्चन विच वाज रिपीटेटिवली आस्क्ड। तो अगर आपको ये सेक्शन प्रिपेयर करना है तो इसके अंदर ये जो टॉपिक्स यू कैन गो थ्रू बियॉन्ड, आई मीन अगर आपको लगता है कि भाई इसके अंदर एडिशनल आपको कुछ पढ़ना है तो ये सब टॉपिक्स ज़्यादातर हमारे UG स्टडीज़ में या फिर PG स्टडीज़ में आ चुके हैं, वहाँ से आप मटेरियल कलेक्ट करके आपकी नोट्स वो जो है वो देख सकते हैं। So thank you very much, and we will come up with one more topic next time. You can contact the email ID placement.bkmg@gmail.com for any other queries. Thank you very much.